सभी को नमस्कार। माई सेल्फ पी.के. शुक्ला, PGT Economics from KV number 2, Jhansi Camp. Dear student, this is my second part of video lesson from the topic correlation, and in this part I will teach you how to calculate the value of Karl Pearson's coefficient of correlation with the help of different methods. So dear students, let's start. First we will see that how the Karl Pearson's coefficient of correlation numerical formula is derived. After that we will see the numericals by different methods. So dear students, let's start that there are two variables. Suppose there are two variables x and y, and the mean of x and y series is given by x bar is equal to sigma x divided by n, and the mean of y series y bar is equal to sigma y divided by n, and the standard deviation of x series is equal to under root sigma x square divided by n. N is number of item, and standard deviation of y series is equal to under root sigma y square divided by n. Here x is equal to x minus x bar and y is equal to y minus y bar. Now we will see the covariance of x and y series, which is equal to sigma x minus x bar into y minus y bar divided by number of pairs of x and y series. Hence, covariance of x and y series is equal to sigma xy divided by n. Remember that here x is equal to x minus x bar and y is equal to y minus y bar. Then numerically the Karl Pearson's coefficient of correlation is actually the R is equal to covariance of x and y series divided by standard deviation of x series and standard deviation of y series. This is the numerical concept of Karl Pearson's coefficient of correlation. Dear student, this formula can be modified into this formula, means sigma xy divided by n into standard deviation of x series and standard deviation of y series. And here for covariance of xy we have taken this concept. Dear students, this formula, basic formula, can further be classified or modified into different types of formula, and because R is equal to sigma xy divided by n, here we have written the full formula of standard deviation of x series and standard deviation of y series. Hence, this formula can be converted into like this, or R is equal to, where R is equal to sigma xy divided by under root sigma x square into under root sigma y square. So this formula and this formula is same, because here sigma x and y, in it x is equal to x minus x bar and y is equal to y bar. So this is the basic concept, that how we have derived, how we have arrived at the basic formula of Karl Pearson's coefficient of correlation. Dear student, now we will see the numericals according to different method of Karl Pearson's coefficient of correlation. We will first see the
एक्चुअल मीन मेथड। द अभी जो हम लोगों ने पढ़ा वो एक्चुअल मीन मेथड ही पढ़ा है। क्यों पढ़ा? क्योंकि हमको मालूम है कि इसमें हमको एक्स बार की वैल्यू निकालनी पड़ती है इस फॉर्मूले में, और वाई बार की भी वैल्यू निकालनी पड़ती है। यहाँ पर क्या है, n इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो दिस इज द एक्चुअल मीन मेथड फॉर्मूला। Dear student, the actual mean method formula is useful when the value of x bar and y bar is not in fraction. Suppose if we are calculating Carl-Pearson's coefficient of correlation of any series x and y, if the value of x bar come in fraction, means if it come in 5.2 or y bar comes is equal to 6.7, then it is advisable that actual mean method should not be used. This method is very simple, but only when the mean value comes in exact number. Now we will see an example, and I will tell you how we have calculated the Carl-Pearson's coefficient of correlations value. Here, see that this is an example. We will learn that how we can solve the Carl-Pearson's coefficient of correlation by the actual mean method. This is the formula of actual mean method, where student you have already known that dx क्या है, यहाँ पर क्या है, xy क्या है, means deviations of x variable from its mean, and y is the deviation of a y variable from its mean. और क्या है इसमें, x y is the product of the two above. Dx square is the square of x and y square is the square of dy. So this is the, we have defined the all variables of formula. Now we will take the example. Suppose the question is that calculate the coefficient of correlation between death and birth rate of the following data. The birth rate is given, it is 24, 26, 32, 33, 35 and 30. And the death rate is given 15, 20, 22, 24, 27 and 24. The solution is that we will arrange this data in this schedule. Birth rate को हम मान रहे हैं क्या, x मान रहे हैं, और डेथ रेट को हम y मान रहे हैं। जब इनका सम किया तो सिग्मा x इज इक्वल टू कितना आया, 180 आया, और नंबर ऑफ आइटम यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, मीन्स नंबर ऑफ पेयर्स यहाँ पर कितने हैं, 6 हैं। इसका मतलब जो ये 180 आया, इसको हम 6 से डिवाइड कर देंगे, देन वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x बार। सिमिलरली जो डेथ रेट है इसको हम y मान रहे हैं, और इनका जो समेशन है ये कितना आया, 132, और 132 को जब हम 6 से डिवाइड कर देंगे, देन वी विल फाइंड द मीन ऑफ y सीरीज, it is 22. Now in this column we are taking the deviation of x from its mean. This is equal to n x minus 30 करेंगे, मीन्स 24 माइनस 30 कितना आया, ये -6, ये कितना आया, -4, ये 2, ये 3, ये 5 और ये 0। सिमिलरली हम y सीरीज का भी इसके मीन से हम डेविएशन निकालेंगे, मीन्स y की वैल्यू निकालेंगे, स्मॉल y की वैल्यू निकालेंगे। हमारा मीन ऑफ y सीरीज इज 22, रिमेंबर दैट। देयरफॉर y स्मॉल y क्या है, y माइनस 22, मीन्स यहाँ पर y की वैल्यू कितनी है, 15 माइनस 22 करेंगे तो यहाँ पर कितना आया, 7 आया। हियर -2, 0, 2, 5 and 2. Dear student, remember that we know the
an interesting properties of arithmetic mean. This is that if the deviation of any series is taken from its mean, then the sum of deviations is equal to 0, and this is here 0. So the summation of this and summation of this series ensures us that the arithmetic mean is correct. Now, we will calculate the value of x square, means x minus x bar का स्क्वायर. हम लोग इसको जो है इसका स्क्वायर निकाल रहे हैं हम यहाँ पे. ये कितना आया 6 का 36, माइनस माइनस क्या हो गए प्लस में हो गए. 4 का 16 आया, 2 का 4, 3 का 9 और 5 का 25 एंड 0 का 0 ही रहेगा. सिमिलरली हम लोगों ने y सीरीज का भी y जो वैल्यू निकाली उसका भी स्क्वायर निकाल लिया. ये कितना है 7 माइनस 7. तो जब मल्टीप्लाई करेंगे या फिर 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना जाएगा 49. ये प्लस में कन्वर्ट हो गया. हियर 4 0 4 25 एंड 4. यहाँ पर 5 है इसलिए 25, यहाँ पर 2 है इसलिए यहाँ पर 4. नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ multiplication of x and y, means small x and small y. x की वैल्यू क्या है देखो यहाँ पे -6, y की वैल्यू कितनी है -7. तो -6 और -7 को जब मल्टीप्लाई करेंगे हम तो ये कितना आया, दिस विल बी इक्वल टू 42. -4 एंड -2 कितना आया 8. सिमिलरली 2 इंटू 0 कितना आया 0. 3 इंटू 2 कितना आया 6. 5 इंटू 5 25. 0 इंटू 2 कितना आया 0. और इसका जो समेशन आएगा ये कितना आया सिग्मा एक्स वाई 81 आया. इसी तरह सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना आया ये 90 आया. सिमिलरली सिग्मा वाई स्क्वायर कितना आया ये 86 आया. हमने देखो फॉर्मूले के हर आइटम की, हर वेरिएबल्स की, हर जो ये यहाँ पे जो फिगर लिखा हुआ है हमने शेड्यूल के द्वारा इन सब की वैल्यू निकाल ली. अब देखिए ये हमने यहाँ पे फॉर्मूला रखा और फॉर्मूले के अनुसार सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू कितनी आई फॉर्मूले में ये 81 आई है. ये 81 वैल्यू हमने रख दी. इसी तरह अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई यहाँ पर 90, ये हमने वैल्यू रख दी. सिग्मा वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई 86. दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आया 81 डिवाइड बाई अंडर रूट 7740. डियर स्टूडेंट्स, if we find the square root of 7740, this will be equal to 87.98. जब भी हम अंडर रूट की वैल्यू निकालेंगे तो 2 डिजिटल निकालेंगे, अप टू 2 डेसिमल पॉइंट के निकालेंगे. अब 81 डिवाइड बाई 87.98 करेंगे तो ये वैल्यू आई 0.92. मीन्स यहाँ पर r की वैल्यू कितनी आई, यहाँ पर r की वैल्यू 0.92 आई है. इस वैल्यू को हम एनालाइज भी कर सकते हैं. कैसे एनालाइज कर सकते हैं, जो हमने शेड्यूल बनाई थी डिग्री ऑफ कोरिलेशन के आधार पे, उसके आधार पे हम ये कह सकते हैं r की वैल्यू किस में आई है पॉजिटिव में आई है. और पॉजिटिव में क्या है नियर टू +1 है. ये कितनी है 0.92. तो ये किस प्रकार का कोरिलेशन है हम आंसर में लिख देंगे the r is equal to the value of r is equal to 0.92 and it is high positive correlation. So dear students, now I hope you have learned how to solve the numerical by the actual mean method. अब कभी कभी एक्चुअल मीन मेथड के आधार पर ही, फॉर्मूले के आधार पर ही कभी एक सिंपल से क्वेश्चन जो है 1 नंबर के या फिर 3 नंबर के आ सकते हैं. जैसे इसमें लिखा हुआ है फाइंड कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन. तब वैल्यू किसकी दी गई है n की वैल्यू दी गई है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x सीरीज की वैल्यू दी गई है और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y सीरीज की वैल्यू दी गई है. और गिवन दैट सम टोटल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ डेविएशंस ऑफ बोथ द सीरीज फ्रॉम एक्चुअल मीन कितना है 300 है. मीन्स हमको ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा r इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई डिवाइड बाई n इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x सीरीज एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y सीरीज. सिंपल हमने वैल्यू रख दी यहाँ पर. ये कितना है r की वैल्यू कितनी है 0.94.
देखो आर की वैल्यू कितनी आई, आर इज इक्वल टू 0.94 और हमने इस आंसर को एनालाइज कर दिया। देखिए क्या लिखा, देयर इज हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। क्यों? क्योंकि जो वैल्यू आई है वो पॉजिटिव में आई है और नियर टू +1 आई है। दैट इज वाई देयर इज अ हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। तो अब तक बच्चों हम लोगों ने एक्चुअल मीन मेथड से कैलकुलेशंस कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू निकालने के लिए पढ़ लिया है, न्यूमेरिकल देख लिए हैं। अब हमारा अगला मेथड है डायरेक्ट मेथड। डियर स्टूडेंट, डायरेक्ट मेथड क्या है, आर इज इक्वल टू, देखिए इसमें आर की जो वैल्यू है इज इक्वल टू n इंटू सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई का मल्टीप्लिकेशन है, डिवाइड बाई अंडर रूट n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। रिमेंबर दैट यहाँ पर क्या है, सिग्मा n इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर है लेकिन एक्स स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर क्या है सिग्मा एक्स, मीन्स पहले हम एक्स की जो सीरीज है उसका सम निकालेंगे फिर उस सम का स्क्वायर करेंगे। और यहाँ पर क्या अंतर है, देखिए दोनों में क्या अंतर है, हम पहले एक्स सीरीज का स्क्वायर निकालेंगे बाद में सम करेंगे। इसी तरह यहाँ पर वाई सीरीज में है n इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। जो ये फॉर्मूला है पहला वाला ऊपर वाला, इस फॉर्मूले को हम इस रूप में भी ले सकते हैं, किस तरह, और r इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई, जो n है इसको हमने यहाँ रख लिया, इज माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई डिवाइड बाई n, फिर डिवाइड कर दिया अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई n। देखिए यहाँ पर n का स्क्वायर नहीं है, केवल ऊपर वाले जो है जो न्यूमरेटर है उसी का ही स्क्वायर है। इसी तरह यहाँ पर अंडर रूट सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर डिवाइड बाई n। सो रिमेंबर दिस फॉर्मूला वेरी केयरफुली। इन दिस फॉर्मूला हम लोगों ने देखा कि हम x और y की डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे। इस वाले फॉर्मूले में हमको अर्थमेटिक मीन निकालने की जरूरत नहीं है, अज्यूम्ड मीन निकालने की जरूरत नहीं है, इसलिए ये डायरेक्ट मेथड कहलाता है। दिस मेथड कब यूज करना चाहिए, इज यूज्ड व्हेन गिवन वेरिएबल क्या है, बहुत स्मॉल है, स्मॉल इन मैग्नीट्यूड। फॉर्मूला भी हम लोगों ने पढ़ लिया, तो इसके आधार पे हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं, क्या है, कैलकुलेट कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द एज एंड वेट ऑफ द चिल्ड्रन। एक इंटरेस्टिंग है, देखिए एज और वेट में कोई कोरिलेशन है क्या, इस फॉर्मूले के अनुसार हम देखते हैं। देखिए एज कितनी है, ईयर्स में 1 साल का, 2 साल का, 3 साल, 4 साल और 5 साल। वेट क्या है, 1 साल में 3 kg, 2 साल का बच्चा हो तो 4 kg, 3 साल का हुआ 6 kg हो गया उसका, 4 साल में 7 kg, 5 साल में 12 kg। अब इनके बीच में हम कोरिलेशन देखेंगे। तो देखिए ये फिगर क्या है, जो ये क्या है, ये बहुत स्मॉल है, कम है, साइज इनका बहुत कम है, तो हम जो है डायरेक्ट मेथड का यूज कर सकते हैं। देखिए इस वाले क्वेश्चन को हमने सॉल्यूशन के तहत क्या लिखा, देखो अगर देखें तो हमने पहले एज, ये जो एक्स सीरीज और ये वेट क्या है वाई सीरीज, हमने सीधे डायरेक्ट देखिए सिंपल एक्स स्क्वायर निकाल लिया, वाई स्क्वायर निकाल लिया और एक्स वाई निकाल लिया, और हमने यहाँ पर एक्स का सम निकाल लिया और वाई का सम निकाल लिया। यहाँ पे सिग्मा एक्स की वैल्यू कितनी आई, सिग्मा एक्स की वैल्यू हमारे यहाँ पर 15 आई है, सिग्मा वाई की वैल्यू कितनी आई यहाँ पर 32 आई है, सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई 55, सिग्मा वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है 254, और एक्स वाई इसका और इसका प्रोडक्ट, एज का और वेट का जो प्रोडक्ट है वो कितना है, देखो उसका सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू आई 117। ध्यान से देखिए इसमें हमने केवल ये दिया गया है, ये दिया गया ऑलरेडी, और हमने एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाली, वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाली और एक्स वाई दोनों का मल्टीप्लिकेशन निकाल लिया, और इस सब का जो है पांचों जो कॉलम है उन सब का सम देख लिया। अगर ध्यान से देखें तो एक तरह से हमने सब वैल्यू जितनी भी ये वैल्यू
सिग्मा एक्स वाई है, सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई है, सिग्मा एक्स स्क्वायर है, सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, ये सब वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। अब सिंपल हम फॉर्मूला लिखेंगे और फॉर्मूले के आधार पर ये वैल्यू लिखेंगे और इन वैल्यू को हम फॉर्मूले में हमने रख दिया। जब हमने रखा तो r इज इक्वल टू, देखो क्या है, n की संख्या कितनी है यहाँ पर 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ पेयर्स आइटम कितने हैं यहाँ पर 5 हैं दोनों सीरीज में, इसलिए n की वैल्यू यहाँ पर कितनी आई 5 आई। और जब वैल्यू रखी तो r इज इक्वल टू 5 इंटू 117, देखो सिग्मा एक्स की y की वैल्यू कितनी आई थी 117 और सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई की वैल्यू कितनी आई है 15 और 32, वो वैल्यू हमने रख दी। इसके बाद अंडर रूट एन की वैल्यू कितनी है 5 है, वो रख दिया हमने। सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू देखो कितनी आई 55 हमने कैलकुलेट की, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। इसके बाद सिग्मा एक्स की वैल्यू देखो कितनी आई 15 है, फिर इसका स्क्वायर किया। सिमिलरली यहाँ पर जो है एन की वैल्यू कितनी है 5 और यहाँ पर सिग्मा वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई थी 2 5 4 आई है हमारे इस एग्जाम्पल में जब हमने कैलकुलेट की है। और यहाँ पर सिग्मा वाई की वैल्यू कितनी है, सम ऑफ वाई कितना है, सम टोटल ऑफ वाई सीरीज कितनी है 32, और हमने इसको स्क्वायर कर लिया। हमने इसको फर्दर सॉल्व किया तो ये कितना आया 5 इंटू 117 585 माइनस 15 इंटू 32 कितना आया 480, और ये हमने दिया 5 इंटू 55 275, 15 का जब स्क्वायर निकालेंगे तो 225 आएगा। सिमिलरली 5 इंटू 254 को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आया 1270, और जब हम 32 का स्क्वायर निकालेंगे तो ये कितना आया 1024। अब हमने यहाँ पे ये माइनस कर लिया, ये माइनस कर लिया, तो ये हमारा फिगर कितना आया 1, इसको माइनस किया तो ये आया 105, और जब इनको हमने और जो है सॉल्व किया तो ये कितना आया 50 इंटू 246, 50 इंटू 246 को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आया अंडर रूट 12,300, मीन्स 105 को हम अंडर रूट 12,300 से डिवाइड कर देंगे। जब इसकी हम अंडर रूट निकालेंगे तो ये कितना आया 110.90, मीन्स 105 डिवाइड बाई 110.90, और जब इसको हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा आंसर कितना आया 0.946 है। तो देखिए ये वैल्यू किस में आ रही है पॉजिटिव है, नियर टू +1 है। देयरफॉर अगर हम कोरिलेशन को यहाँ पर एनालाइज करें तो x और y मीन्स एज और वेट ऑफ द चिल्ड्रन में क्या है, किस तरह का रिलेशनशिप है, देयर इज हाई पॉजिटिव कोरिलेशन। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग जो है हमारा आंसर निकला। देखो रियल लाइफ से हम कोरिलेशन को जोड़ रहे हैं, एक इंटरेस्टिंग है कि क्या एज और वेट के बीच में कोरिलेशन है, एक एसोसिएशन है। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है डियर स्टूडेंट्स, यस इट इज correlation, it is associated, there is a positive correlation between age and weight in this example। अब हम तक हम लोगों ने डायरेक्ट मेथड पढ़ लिया। देखिए डायरेक्ट मेथड की विशेषता क्या रही, जब ये फिगर हैं बहुत कम हैं, छोटे हैं, इनकी वैल्यू कम है, तो हम जो है हमने यहाँ पर हमको यहाँ पर x बार की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, y बार की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, हमको स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x सीरीज निकालने की जरूरत नहीं है, और सिमिलरली स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y सीरीज की निकालने की आवश्यकता नहीं है। हमने सीधे फॉर्मूला लिखा और डायरेक्टली जो है वैल्यू निकाल के हमने रख दी। ये बड़ा सिंपल है, लेकिन ध्यान देना है क्या है, जब कब यूज करेंगे, जब ये जो है वेरिएबल्स क्या है स्मॉल है इन मैग्नीट्यूड है। रिमेंबर दैट इस फॉर्मूले को स्टूडेंट रट लेंगे, क्योंकि जो आगे आने वाले हमारे फॉर्मूले हैं ठीक है वो इन्हीं इस फॉर्मूले के इसी स्टेप पर बेस्ड हैं, ज्यादा अंतर नहीं है। यहाँ पे हमने क्या किया है एक्स वाई हमने डायरेक्ट वैल्यू दी है, वहां पे हम जो हमारा तीसरा मेथड है जो शॉर्टकट मेथड है जो अज्यूम्ड मीन मेथड है उसमें हमने अज्यूम्ड मीन से डेविएशन निकाल लिया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं शॉर्टकट मेथड की तरफ। शॉर्टकट मेथड का पहले हम फॉर्मूला देखते हैं। देखिए ये जैसा बताया इन केस द मीन जो है क्या है, अगर होल नंबर है ठीक है तो ठीक है,
हमारा जो एक्चुअल मीन मेथड क्या है, सिंपल है, बट व्हेन द मीन इज इन फ्रैक्शन द शॉर्टकट मेथड इज यूज्ड। इन दिस मेथड द डेविएशंस आर कैलकुलेटेड फ्रॉम अज्यूम्ड मीन। और इसको देखो, जो डायरेक्ट फॉर्मूला था ना, उसी के तहत बिल्कुल वही वाले स्टेप हैं, लेकिन क्या हो गया, यस को हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें, dx में, और y को कन्वर्ट कर दिया हमने dy में। देखिए r इज इक्वल टू n इंटू सिग्मा dx इंटू dy माइनस सिग्मा dx इंटू सिग्मा dy डिवाइड बाई अंडर रूट, देखिए n इंटू सिग्मा dx x स्क्वायर माइनस जो है सिग्मा ds का होल स्क्वायर। सिमिलरली अंडर रूट n इंटू सिग्मा dy स्क्वायर माइनस सिग्मा dy का होल स्क्वायर। तो ये हमारा शॉर्टकट मेथड है। पहले वाले डायरेक्ट मेथड में और इसमें ज्यादा अंतर नहीं है, केवल ये किसका अंतर है, यहाँ पर सिग्मा ds क्या है, यहाँ पर सम ऑफ द डेविएशंस ऑफ x सीरीज फ्रॉम इट्स अज्यूम्ड मीन। इसी तरह सिग्मा dy हियर क्या है, सम ऑफ द डेविएशंस ऑफ y सीरीज फ्रॉम इट्स अज्यूम्ड मीन। सिमिलरली सिग्मा dx स्क्वायर क्या है, यहाँ पर सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन ऑफ x सीरीज फ्रॉम इट्स अज्यूम्ड मीन। इसी तरह सिग्मा dy स्क्वायर क्या है, सम ऑफ स्क्वायर डेविएशंस ऑफ y सीरीज फ्रॉम इट्स अज्यूम्ड मीन। और सिग्मा dx इंटू dy क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ डेविएशंस ऑफ x एंड y सीरीज फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव अज्यूम्ड मीन, है ना। और n क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ पेयर्स। तो ये हमने फॉर्मूले को डिफाइन कर दिया। एग्जाम में अगर फॉर्मूला लिखेंगे तो जनरली स्टूडेंट्स हम ईच वर्ड को भी, फॉर्मूले के ईच वर्ड को भी हम डिफाइन करेंगे। देखिए जो अभी हमने अज्यूम्ड मीन मेथड पढ़ा, उसका जो है फॉर्मूला हमने इस प्रकार से लिख लिया। जो ये फॉर्मूला हमने पढ़ा ऊपर अभी, उसको हम इस वाले फॉर्मूले को इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला सेम है, बस अंतर क्या है, जो n की वैल्यू है हमने यहाँ ले आए इसके नीचे, मीन्स ये भी ऊपर नीचे अगर 1/n से हम डिवाइड कर देंगे तो ये वैल्यू हमको मिल जाएगी। देखिए वेयर इन दिस फॉर्मूले में क्या है, dx इज इक्वल टू x माइनस अज्यूम्ड मीन, और dy क्या है, इज इक्वल टू y माइनस a मीन्स अज्यूम्ड मीन। ठीक है, ए क्या है, अज्यूम्ड मीन फ्रॉम x एंड y सीरीज। अज्यूम जो ए की वैल्यू y सीरीज की अलग हो सकती है और x सीरीज की अलग हो सकती है। अब इसमें भी एक टेक्निक है, जब हम सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल, अब देखते हैं हम। देखिए एक न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x एंड y सीरीज using Carl Pearson's method. This is our question. x की वैल्यू कितनी है, 14, 12, 14, 16, 16, 17, 16 एंड 15। और इसके बाद जो है y की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 13, 11, 10, 15, 15, 9, 14 एंड 17। ध्यान से देखें, यहाँ पर जो नंबर ऑफ आइटम है वो कितने हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 मीन्स 8 पेयर्स ऑफ x एंड y वेरिएबल्स हैं। देखिए हमने इसको अरेंज किया, x की वैल्यू को और y की वैल्यू को। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर dx निकाला, मीन्स अज्यूम्ड मीन माना। सपोज अज्यूम्ड मीन हमने क्या माना, कितना है, यहाँ पर x सीरीज के लिए देखो x माइनस ax है। ठीक है, x सीरीज के लिए हमने 15 माना और y सीरीज के लिए हमने 14 मान लिया। ठीक है, तो देखो जब dx निकाला तो 14 माइनस 15, यहाँ पे -1, यहाँ पे -3, यहाँ पे 1, यहाँ -1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, 2 और 1 और ये 0 आया। जब हमने इसको सम किया तो सिग्मा ds की वैल्यू बाई चांस कितनी आ रही है, यहाँ पर 0 आ रही है। इसी तरह जो dx है, अब हमने इसका स्क्वायर निकाल लिया, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 और 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर कितना है 1, 0 का 0 आएगा।
अब हमने निकाल लिया सिग्मा डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, 18 आई। अब यही प्रोसेस हम किसके लिए करेंगे, वाई सीरीज के लिए करेंगे। वाई सीरीज का भी डेविएशन निकालेंगे हम। इसके अज्यूम्ड मीन ऑफ वाई सीरीज हमने कितना माना, 14 माना। अब देखिए जब माना हमने 14 तो 13 माइनस 14 कितना आया, -1, 11 माइनस 14 -3 एंड सो ऑन। यहाँ पे -4, यहाँ पर 1 1 -5 0 और 3। जब इन सब का हमने सम किया ये कितना आया, ये सब का सम जो है -8 आया। प्लस प्लस को अलग, माइनस माइनस को आया, अलग जोड़ लिया हमने, सम कर लिया तो ये वैल्यू कितनी आई है, माइनस आई। मीन्स सिग्मा डी वाई की वैल्यू कितनी आ रही है, -8। अब हमने इसका स्क्वायर निकाल लिया, जो ये डी वाई है इसका हमने स्क्वायर निकाला। स्क्वायर देखो, -1 का स्क्वायर 1, -3 का 9, -4 का 16, 1 का 1 ही रहेगा, 1 का 1 ही रहेगा, -5 का कितना हो गया 25, 0 का 0 और 3 का 9। अब हमने सिग्मा डी वाई स्क्वायर निकाला, कितना आया ये 62 आया, 62 आया, 62 आया। अब इसके बाद हमने dx और जो dy की वैल्यू आई है इनका हमने मल्टीप्लिकेशन निकाल लिया, dx इंटू dy। देखिए -1 और -1 ये +1 आ गया, -3 यहाँ पर ले रहे हैं हम और यहाँ पर -3, तो ये -3 क्या हो गया, +1। इसी तरह -1 और -4 कितना आया, 4, 1 और 1 1 आया, 1 और 1 कितना आया, 1 आया, 2 और देखो ये -5 की वैल्यू कितनी आई, यहाँ पे कितनी आई, 10 आई, -10। 1 और 0 की वैल्यू 0, 0 और 3 की वैल्यू 0। तो dx इंटू dy की वैल्यू डियर स्टूडेंट हमारे इस शेड्यूल में कितनी आई, 6 आई। अब हमने देखिए सीधे फॉर्मूले के अनुसार हमने इनको लिख लिया, ये एग्जाम में लिखना पड़ेगा अलग से। dx सिग्मा dx कितना है 0, सिग्मा dx स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकाली हमने, dx स्क्वायर की वैल्यू 18 निकाली। देखिए इसके अनुसार सिग्मा dy कितना आया हमारा -8 आया, और सिग्मा dy स्क्वायर कितना आया 62 आया, और सिग्मा dxy कितना आया 6 आया। डियर स्टूडेंट हमने फॉर्मूला लिखा और इन सब की वैल्यू हमने फॉर्मूले में रख दी। तो सिग्मा dx इंटू डी वाई कितना है 6 है, एन की वैल्यू 8 है, माइनस सिग्मा dx इंटू डी वाई कितना है 0 और -8, अंडर रूट कर लिया हमने, अंडर रूट एन की वैल्यू कितनी है 8, सिग्मा ds स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 18 आई है, रख दी हमने। यहाँ पर सिग्मा ds कितना है 0 है तो इसका स्क्वायर कर दिया, अंडर रूट इंटू अंडर रूट 8 इंटू देखो एन की वैल्यू कितनी है 8 है, और इसके बाद सिग्मा dy स्क्वायर की वैल्यू जो हमने निकाली वो कितनी है 62 है यहाँ पर, और यहाँ पर माइनस है सिग्मा dy कितना है, यहाँ पे सिग्मा dy की वैल्यू कितनी निकाली हमने, सिग्मा dy की वैल्यू देखें कितनी निकाली -8, वो हमने वैल्यू यहाँ पे रख दी और इसका स्क्वायर। जब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे तो ये 0 हो जाएगा ना, ये वैल्यू 8, ठीक है, यहाँ पर ये वैल्यू कितनी आ गई 0, ये यहाँ पर 40 नहीं है, यहाँ पे 8 है, 48, यहाँ पर ये 48 माइनस 0 यहाँ पे कितना आया 48 आया, और नीचे को हम सॉल्व करेंगे तो ये 144 और 0 यहाँ पे 496 और -64। जब इनको हमने सॉल्व किया अलग से तो अंडर रूट 144 इंटू 432, जब इनका मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आया अंडर रूट 62,208, और ये 48 का 48 रहा। इसके बाद हमने 40 जब 62,208 का जब अंडर रूट निकाला, बच्चों आपको अंडर रूट अलग से जब हम जहाँ पे सॉल्व करेंगे एग्जाम में वहीं पर भी कॉलम पेज में खींचेंगे, है ना, एक लाइन खींचेंगे इस तरह, और यहीं पर अंडर रूट हमको निकालना पड़ेगा, है ना, बगल में ये नहीं कि और दूसरे पेज में आप अंडर रूट निकाल रहे हैं। जो भी कैलकुलेशन न्यूमेरिकल की आपको करना है आप जो है सेम पेज में एक लाइन खींच दीजिए और जो है राइट हैंड साइड में कॉलम के कर दीजिए, ऊपर लिख दीजिए रफ वर्क, है ना। जब इसको हम सॉल्व करेंगे ये कितना आया 0.192, मीन्स हम इसको 2 डिजिट में रख देंगे तो 0.19 हमारा आंसर आया। देखो ये पॉजिटिव कोरिलेशन है लेकिन क्या है ये वीक है क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है नियर टू 0 है। डियर स्टूडेंट जो ये फॉर्मूला से हमने अभी शॉर्टकट मेथड को देखा सॉल्व किया
इसका फॉर्मूला हम ये सेम फॉर्मूला है, हम इस मेथड से भी निकालेंगे तभी आंसर हमारा सेम आएगा। अब सवाल ये है कि जो ये डायरेक्ट मेथड है और जो ये शॉर्टकट मेथड है, इनमें अंतर क्या है। देखिए, शॉर्ट डायरेक्ट मेथड नो डाउट बहुत अच्छा मेथड है, इसमें हमको अज्यूम्ड मीन निकालने की जरूरत नहीं है, इसमें हमको अर्थमेटिक मीन निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन जब ये फिगर देखो यहाँ पे बहुत ज्यादा बड़े बड़े हैं, तो अगर हम डायरेक्ट मेथड से निकालते तो मल्टीप्लीकेशन सम में बहुत ज्यादा समय लगता, सभी में सम करने में, जोड़ करने में, सॉल्व करने में टाइम लगता। इसलिए आवश्यकता पड़ी है किसकी, हमको स्टेप डेविएशन मेथड की या फिर शॉर्टकट मेथड की। और हमने एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी कि द वैल्यू ऑफ आर इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ स्केल एंड चेंज ऑफ ओरिजिन। तो यहाँ पे देखो, हमने अगर डेविएशन निकाल लिया तो क्या है, हमने यहाँ पे क्या कम कर दिया, चेंज ऑफ स्केल कर दिया, है ना, तो वैल्यू सेम रही। तो ये बच्चों हम लोगों ने कैलकुलेशंस कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को की वैल्यू शॉर्टकट मेथड के द्वारा निकालना हमने सीख लिया। अब हम पढ़ेंगे जो हमारा फोर्थ स्टेप है, फोर्थ मेथड है आर की वैल्यू निकालने के लिए, वो है स्टेप डेविएशन मेथड। डियर स्टूडेंट, जो ये वाला मेथड है ये बड़ा इंटरेस्टिंग मेथड है और टाइम सेविंग मेथड है। क्यों टाइम सेविंग है, देखो फॉर्मूला लगभग सेम है, इसके जो स्टेप हैं, जो यहाँ पर स्टेप है, यहाँ पर जो है वो डायरेक्ट मेथड जैसे ही हैं या फिर स्टेप डेविएशन जैसे ही हैं। लेकिन यहाँ पे देखो अंतर, देखो यहाँ पे जो dx बार आया है या फिर जो है dy बार आया है, यहाँ पर ds क्या है, x माइनस a क्या है अज्यूम्ड मीन ऑफ x सीरीज, और I क्या है कॉमन फैक्टर ऑफ दिस सीरीज x सीरीज। इसी तरह यहाँ पर क्या है कॉमन फैक्टर ऑफ y सीरीज। तो यहाँ पे हमने dx नहीं है, क्या है dx बार बार और dy बार है, और उन मीन्स डेविएशन की जो वैल्यू निकाली है उनको उस सीरीज के कॉमन फैक्टर से हमने क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। इसी तरह y सीरीज के कॉमन फैक्टर से हमने डिवाइड कर दिया है। यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं जो r की जो प्रॉपर्टीज है कि r इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ स्केल एंड चेंज ऑफ ओरिजिन। इसका मतलब अगर हम जो है x और y सीरीज के जो वेरिएबल्स हैं दिए गए हैं, उनकी वैल्यू को अगर हम चाहे x की सीरीज की वैल्यू को चाहे y सीरीज की वैल्यू हो, उनको जो उनका अगर डेविएशन निकालें फिर कॉमन फैक्टर से हम डिवाइड कर दें, चाहे एक का चाहे दोनों का, तो मीन्स r की वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। और इसको हम एक न्यूमेरिकल के द्वारा सॉल्व करके देखेंगे, और जब हमने उसकी वैल्यू को कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर दिया तब भी देखेंगे r की वैल्यू में कोई अंतर नहीं आ रहा है। तो अब हम अपना एक न्यूमेरिकल देखते हैं। देखिए, ये सपोज एक न्यूमेरिकल है और इस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करने जा रहे हैं किसके द्वारा, बाय द स्टेप डेविएशन मेथड। देखो क्या लिखा हुआ है, कंप्यूट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय कार्ल पियर्सन्स मेथड, है ना, फॉर द फॉलोइंग डाटा। ये ऑलरेडी किसके मेथड के द्वारा करना पड़ेगा हमको, यहाँ पे कर रहे हैं शॉर्ट स्टेप डेविएशन मेथड। देखो x की वैल्यू यहाँ पे क्या है, इसका फिगर बहुत बड़ा है, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300, 2400, 2500 एंड 2600। ऑन द अदर हैंड बाई चांस मैंने जानबूझ के इस तरह का लिया है कि जो जो यहाँ पे y की जो वैल्यू है, यहाँ पे f नहीं है, ये y की वैल्यू कितनी है 5 5 6 9 7 8 6 8 9। मतलब देखो अगर हम उतनी वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे अगर स्टेप डेविएशन का मेथड का यूज नहीं करेंगे तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगभग आधे घंटे से भी ज्यादा समय लगेगा। अब यहाँ पर हम यूज करते हैं चेंज ऑफ ओरिजिन, चेंज ऑफ स्केल को केवल x सीरीज में, y सीरीज में नहीं कर रहे हैं, है ना। हमने पहले ही बताया है कि हम जो है चाहे इस वैल्यू में x सीरीज के जो है कॉमन फैक्टर से हटा दें या फिर जो अज्यूम्ड मीन से कम कर दें इसकी वैल्यू को, तब भी इसमें r की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे x सीरीज में करें चाहे y सीरीज में या फिर चाहे दोनों में करेंगे। लेकिन यहाँ पर केवल x सीरीज में कर रहे हैं हम, क्योंकि x सीरीज के जो वेरिएबल है, मैग्नीट्यूड है वेरिएबल्स के, वो बहुत बड़े दिए गए हैं। देखो यहाँ पे n की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मीन्स नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ x एंड y कितना है 9 है।
है ना। देखो यहाँ पे हमने अरेंज किया, जो है कॉलम में अरेंज किया हमने, ये रो में जो क्वेश्चन पूछा गया हमने कॉलम में इन सब डेटा को अरेंज कर लिया। देखो लेट द अज्यूम्ड मीन ऑफ x एंड y सीरीज, मीन्स x और y कितना है 22, जो है अज्यूम्ड 2200 किसका है, ये किसका है x सीरीज का, और 6 इसका है y सीरीज का। तो जब हमने निकाला इसको, देखो ds की वैल्यू निकाली हमने 1800 माइनस 2200, 400 माइनस आया, ये माइनस 300, ये माइनस 200 आया, ये 100, ये यहाँ पे 0, यहाँ पर 100, यहाँ पर 200, 300 और यहाँ पे 400। अब देखो अगर हम ध्यान से देखें तो इन सब वैल्यू को हम 100 से डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या है 100 है, और चलो हम सबको डिवाइड कर दिया तो 400 कितना हो गया, माइनस 400 बिकम 4, माइनस 300 बिकम्स माइनस 3, माइनस 200 बिकम माइनस 2, माइनस 100 बिकम माइनस 1, 0 100 1 100 2 में कन्वर्ट हो गया, 200 2 में कन्वर्ट हो गया, 300 3 में, और ये 4 में, है ना। जब सब सम किया हमने बाई चांस कितना आ रहा है, ये 0 आ रहा है। तो कितनी बड़ी वैल्यू थी, इसको हमने बिल्कुल मिनिमाइज कर लिया। अब dy क्या है 6, हमने assumed मीन ऑफ y सीरीज कितना है, यहाँ पर 6 है, तो 5 माइनस 6 माइनस 1, 5 माइनस 6 माइनस 1, 6 माइनस 6 0, 9 माइनस 6 3, 7 माइनस 6 1, 8 माइनस 6 2, और ये हमने इस तरह से वैल्यू निकाल ली। देखो सिग्मा dy की वैल्यू कितनी आई, 9 आई है। अब हमने dx स्क्वायर की वैल्यू, इस सॉरी जो ये dx बार है, dx बार है, इसकी वैल्यू निकाली। ये कितना आया, वैल्यू कितना आया, देखो 4 की जो जब हम स्क्वायर करेंगे तो 16, 3 का स्क्वायर माइनस माइनस 3 का स्क्वायर 9, माइनस 2 का स्क्वायर 4, ये तो प्लस में कन्वर्ट हो गई, माइनस 1 का 1 0 1 4 9 और ये 16, ये वैल्यू आई। सिग्मा ds स्क्वायर को जब हम जोड़ेंगे, सम करेंगे, तो सम ऑफ सिग्मा ds स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया है, यहाँ पे 16। इसी तरह dy स्क्वायर मीन्स y, जो ये dy है इसका भी स्क्वायर कर लेंगे, यहाँ पे ये 1 आया 1 आया, 0 का 0, 3 का 9, 1 का 1, 2 का 4, 0 का 0, 2 का 4, 3 का 9। अब हमने लास्ट स्टेप में क्या किया है, dx इंटू dy, मीन्स जो ये वैल्यू आई है dy dx और ये dy, इनका मल्टीप्लाई किया, -4 और -1 कितना आया 4, -3 और -1 3, -2 और 0 ये 2 आया, -1 और 3 कितना आया -3, 0 और 1 कितना आया, देखो 0 वैल्यू आई, 1 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 आया, 2 और 0 का 0, 3 और 2 का 6, और 4 इंटू 3 कितना करेंगे, ये 16, और जब हम इन सब का सम करेंगे तो कितनी वैल्यू आई, सिग्मा dx इंटू dy की वैल्यू 24 आई। मीन्स फॉर्मूले के अनुसार हमने सबकी वैल्यू निकाली, हमने सीधे वैल्यू फॉर्मूले में रख दी। r इज इक्वल टू कितना है, यह 9 क्या है, n की मात्रा है, और ये 24 है क्या है, सिग्मा dx इंटू dy, और इसके बाद जो है हम देखेंगे सिग्मा dx कितना है 0, सिग्मा dy 9 है, और अंडर रूट हमने ये वैल्यू निकाल ली, n की वैल्यू कितनी है 9, और इसके बाद सिग्मा dx स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 60, और dx की वैल्यू कितनी है 0, यहाँ पे आ गई, इस अंडर रूट 9, और जो है हम देखेंगे सिग्मा dy स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 29, और सिग्मा ds की वैल्यू कितनी है 9 स्क्वायर स्क्वायर। जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये कितने में आया 216 डिवाइड बाई अंडर रूट 97,200। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू भी एक तरह से किस में आ रही है, पॉजिटिव में, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे जो है पॉजिटिव है, किस प्रकार का कोरिलेशन है, यहाँ पे जो कोरिलेशन है वो पॉजिटिव है ना, लेकिन मॉडरेट है, जो है हाई नहीं है, मॉडरेट पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन दिस टू x एंड y सीरीज। तो ये हमने यूज देखा स्टेप डेविएशन मेथड का। ये बहुत ही शॉर्टकट मेथड है। स्टेप डेविएशन मेथड क्या है, बहुत बड़े सवाल को बहुत कम कर देता है, बहुत जल्दी सॉल्व करता है, और इससे की मेथड के द्वारा हमारे टाइम की बचत होती है। तो डियर स्टूडेंट, अब तक हमने चारों मेथड कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के देख लिए। इसी तरह के बेस्ड सवाल आएंगे आपके एग्जाम में। जनरली 6 मार्क्स का क्वेश्चन
आपके मार्क्स वाले एग्जाम में आएंगे। जब भी कोई एग्जाम होगा तो इसमें ये क्वेश्चन जरूर आता है। जो ये स्टेप डेविएशन मेथड है इसको यूज करना समझ लीजिए, क्योंकि कभी पर भी कहीं पर भी अगर बड़े फिगर के क्वेश्चंस आते हैं तो हम उनके लिए कैलकुलेशन के लिए स्टेप डेविएशन का मेथड का यूज करेंगे और हमारा आंसर बहुत ही जल्दी आ जाएगा। अब हम देखेंगे, अब हमने जब पूरा कैलकुलेशन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पढ़ लिया है तो हम देखेंगे मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ कैलकुलेशन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। मेरिट्स क्या है? एक तो ये बड़ा पॉपुलर मेथड है, ये बेस्ड है अर्थमेटिक मीन ऑफ एक्स सीरीज एंड वाई सीरीज मीन्स मीन ऑफ एक्स एंड वाई सीरीज बोथ सीरीज, और इसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स सीरीज पर और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई सीरीज पर, है ना। इसलिए क्या है, एक आइडियल मेथड है। और क्या है, समराइज इन वन फिगर द डिग्री एंड डायरेक्शन ऑफ कोरिलेशन। देखो सीधे एक फिगर में ये बता देता है कि हाँ डिग्री कितनी है, कितना स्ट्रॉन्ग जो है कोरिलेशन है, किस प्रकार में है, प्लस में है कि माइनस में है, डायरेक्शन भी बता देता है ना। लेकिन इसकी डीमेरिट्स है, क्या है, क्योंकि ये बेस्ड है किसके ऊपर, अर्थमेटिक मीन के ऊपर, तो इसलिए क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन वाई सीरीज के आधार पे, इसलिए इसके जो वैल्यू होती है इट इज अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, है ना। टाइम बहुत लगता है, टाइम कंज्यूमिंग मेथड है। स्कैटर डायग्राम की तुलना में क्या इसमें बहुत ज्यादा समय लगता है, कैलकुलेशन करना पड़ता है। हमने पहले ही बताया था कैलकुलेशन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन किस अजम्पशन पर आधारित है, लीनियर रिलेशनशिप है। अगर नॉन लीनियर रिलेशनशिप है मतलब जो आर की वैल्यू आएगी वो सही नहीं आएगी, मिसलीडिंग हो सकती है, और पॉसिबिलिटी ऑफ रॉन्ग इंटरप्रिटेशन। अगर एक्सपर्ट नहीं है तो पूरे जो है जो इंटरप्रिटेशन करेंगे, एनालाइज करेंगे आंसर को, उसको हम गलत बता सकते हैं। क्या है, दिस मेथड कैन बी ascertained only when quantitative measurement of various item of a series are available। मीन्स क्वालिटेटिव के आंसर नहीं निकाल पाएगा, किसके निकाल पाएगा, क्वांटिटेटिव मेथड को, है ना। क्वालिटेटिव के लिए हमारा अलग जो है मेथड है वो है रैंक कोरिलेशन, स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन, वो आपके सिलेबस से अब हट गया है। अब तक जो हमने कैलकुलेशन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पढ़ा, इसके कुछ फीचर्स हैं। क्या फीचर्स हैं? नंबर 1 फीचर्स क्या है, नॉलेज ऑफ डायरेक्शन ऑफ कोरिलेशन, साइज ऑफ कोरिलेशन मालूम चलता है। ये एक आइडियल मेजर है। व्हाई इट इज आइडियल मेजर? बिकॉज द वैल्यू ऑफ कैलकुलेशन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन is based on arithmetic mean of X series and arithmetic mean of Y series and their respective standard deviation. That is why this calculation coefficient of correlation is considered as the ideal measure and it is also used in higher studies. ये क्या करता है? This indicate magnitude and direction. So dear student, हम लोगों ने फीचर्स देख लिए, हम लोगों ने मेरिट्स और डिमेरिट्स देख लिए। तो अब इस वीडियो में केवल यहीं तक। थैंक यू। अब हम फिर अगली क्लास में मिलेंगे। बच्चों पूरे लेसन को समझने के लिए मैंने पहले ही बताया है कि मैंने 2 वीडियो बनाए हुए हैं, इसके 2 पार्ट हैं। पहले पार्ट में कोरिलेशन की थ्योरी ली है और दूसरे पार्ट में न्यूमेरिकल्स लिए हैं। तो दोनों वीडियो को अच्छे से देखना है, समझना है, तभी हम जो है इस सवाल को, इस पूरे टॉपिक को आसानी से कर पाएंगे। बच्चों समझने के लिए, पढ़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।